بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب خدا کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب برحق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا اور آفتاب و ماہتاب کو مسخر بنایا کہ سب ایک معینہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ وہی تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور اپنی آیات کو مفصل طور سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم لوگ پروردگار کی ملاقات کا یقین پیدا کر لو۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں اٹل قسم کے پہاڑ قرار دیے اور نہریں جاری کی اور ہر پھل کا جوڑا قرار دیا۔ وہ رات کے پردے سے دن کو ڈھانک دیتا ہے اور اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور زمین کے متعدد ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغات ہیں اور زراعت ہے اور کھجورے ہیں، جن میں بعض 2 شاخ کی ہیں اور بعض 1 شاخ کی ہیں، اور سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، اور ہم بعض کو بعض پر کھانے میں ترجیح دیتے ہیں، اور اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہے تو تعجب کی بات ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ کیا ہم خاک ہو جانے کے بعد بھی نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے، اور انہی کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، اور یہی اہل جہنم ہے اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے ہی برائی عذاب چاہتے ہیں، جبکہ ان کے پہلے بہت سی عذاب کی نذیریں گزر چکی ہیں، اور آپ کا پروردگار لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر بخشنے والا بھی ہے اور بہت سخت عذاب کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر عورت کے شکم میں کیا ہے اور اس کے رحم میں کیا کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ہر شے کی اس کے نزدیک ایک مقدار معین ہے۔ وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا بزرگ و بالا تر ہے۔ اس کے نزدیک تم میں کے سب برابر ہیں، جو بات آہستہ کہے اور جو بلند آواز سے کہے۔ اس کے لیے سامنے اور پیچھے سے محافظ طاقتیں ہیں جو حکم خدا سے اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے، اور جب خدا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی اور سرپرست ہے۔ وہی خدا ہے جو تمہیں ڈرانے اور لالچ دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور پانی سے لدے ہوئے بوجھل بادل ایجاد کرتا ہے۔ گرج اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے تو جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں کچ بحثی کر رہے ہیں، جبکہ وہ بہت مضبوط قوت اور عظیم طاقت والا ہے۔ برحق پکارنا صرف خدا ہی کا پکارنا ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے، سوائے اس شخص کے مانند جو پانی کی طرف ہتھیلی پھیلائے ہو کہ منہ تک پہنچ جائے، اور وہ پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا ہمیشہ گمراہی میں رہتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان والے ہنسی خوشی یا زبردستی سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی سجدہ کنا ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے، اور بتا دیجئے
کہ اللہ ही है, और कह दीजिए कि तुम लोगों ने उसको छोड़कर ऐसे सरपरस्त इख्तियार किए हैं जो खुद अपने नफे और नुकसान के मालिक नहीं हैं। और कहिए कि क्या अंधे और बीना एक जैसे हो सकते हैं, या नूर और जुल्मत बराबर हो सकते हैं, या इन लोगों ने अल्लाह के लिए ऐसे शरीक बनाए हैं जिन्होंने उसी की तरह की कायनात खल्क की है और इन पर खिलकत मुश्तबा हो गई है। कह दीजिए कि अल्लाह ही हर शय का खालिक है और वही यकता और सब पर गालिब है। उसने आसमान से पानी बरसाया तो वादियों में बकदर ज़र्फ बहने लगा और सैलाब में जोश खाकर झाग आ गया, और इस धात से भी झाग पैदा हो गया जिसे आग पर जेवर या कोई दूसरा सामान बनाने के लिए पिघलाते हैं। इसी तरह परवरदिगार हक व बातिल की मिसाल बयान करता है कि झाग खुश्क होकर फना हो जाता है और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है वो जमीन में बाकी रह जाता है, और खुदा इसी तरह मिसालें बयान करता है। जो लोग परवरदिगार की बात को कबूल कर लेते हैं इनके लिए नेकी है, और जो इसकी बात को कबूल नहीं करते इन्हें जमीन के सारे खजाने भी मिल जाएं और इसी कदर और भी मिल जाएं तो ये बतौर फिदिया दे देंगे, लेकिन इनके लिए बदतरीन हिसाब है और इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। क्या वो शख्स जो ये जानता है जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ से नाजिल हुआ सब बरहक है, वो इसके जैसा हो सकता है जो बिल्कुल अंधा है? हरगिज नहीं। इस बात को सिर्फ साहिबाने अक्ल ही समझ सकते हैं जो अहद खुदा को पूरा करते हैं और अहद शिकनी नहीं करते हैं, और जो इन ताल्लुकात को कायम रखते हैं जिन्हें खुदा ने कायम रखने का हुक्म दिया है और उससे डरते रहते हैं और बदतरीन हिसाब से खौफजदा रहते हैं, और जिन्होंने मर्जी खुदा हासिल करने के लिए सब्र किया है और नमाज कायम की है और हमारे रिस्क में से खुफिया व ऐलानिया इन्फाक किया है, और जो नेकी के जरिए बुराई को दफा करते रहते हैं, आखिरत का घर इन्हीं के लिए है। ये हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनमें ये खुद और इनके आबाओ अजदाद और अज़वाज औलाद में से सारे नेक बंदे दाखिल होंगे, और मलाइका इनके पास हर दरवाजे से हाजिर देंगे, कहेंगे कि तुम पर सलामती हो कि तुमने सब्र किया है और अब आखिरत का घर तुम्हारी बेहतरीन मंजिल है। और जो लोग अहद खुदा को तोड़ देते हैं और जिनसे ताल्लुकात का हुक्म दिया गया है इनसे कता ताल्लुकात कर लेते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं, इनके लिए लानत और बदतरीन घर है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को वसी या तंग कर देता है, और ये लोग सिर्फ जिंदगानी दुनिया पर खुश हो गए हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में जिंदगानी दुनिया सिर्फ एक वक्ती लज्जत का दर्जा रखती है और बस। और ये काफिर कहते हैं कि इनके ऊपर हमारी पसंद की निशानी क्यों नहीं नाजिल होती, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, और जो इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं इन्हें हिदायत दे देता है। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं और इनके दिलों को याद खुदा से इत्मीनान हासिल होता है, और आगाह हो जाओ कि इत्मीनान याद खुदा से ही हासिल होता है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए बेहतरीन जगह बहिश्त और बेहतरीन बाज़गश्त है। इसी तरह हमने आपको एक ऐसी कौम के दरमियान भेजा है जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि आप इन चीजों की तिलावत करें जिन्हें हमने आपकी तरफ बजरिए वही नाजिल किया है, हालांकि वो लोग रहमान का इनकार करने वाले हैं। आप इनसे कहिए कि वो मेरा रब है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, उसी पर मेरा एतमाद है और उसी की तरफ बाज़गश्त है। और अगर कोई कुरान ऐसा हो जिससे पहाड़ों को अपनी जगह से चलाया जा सके या जमीन तय की जा सके या मुर्दों से कलाम किया जा सके तो वो यही कुरान है, बल्कि तमाम उमूर अल्लाह के लिए हैं। तो क्या ईमान वालों पर
वाज़ेह नहीं हुआ कि अगर खुदा जबरन चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता और इन काफिरों पर इनके करतूत की बिना पर हमेशा कोई न कोई मुसीबत पड़ती रहेगी या इनके दयार के आसपास मुसीबत आती रहेगी, यहां तक कि वादे इलाही का वक्त आ जाएगा कि अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है। पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, तो हमने काफिरों को थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी और उसके बाद अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो कैसा सख्त अजाब हुआ। क्या वो जात जो हर नफ्स के अमाल की निगरान है और उन्होंने इसके लिए शरीक फर्ज कर लिए हैं, तो कहिए कि जरा शुरका के नाम तो बताओ। तुम खुदा को उन शुरका की खबर दे रहे हो जिनकी सारी जमीन में इसे भी खबर नहीं है, या फकत ये जाहिरी अल्फाज हैं। और सच तो ये है कि काफिरों के लिए इनका मकर आरास्ता हो गया है और इन्हें राह हक से रोक दिया गया है, और जिसे खुदा हिदायत ना दे उसका कोई हिदायत करने वाला नहीं है। इनके लिए जिंदगानी दुनिया में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो और ज्यादा सख्त है, और फिर अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं है। जिस जन्नत का साहिबान तकवा से वादा किया गया है, इसकी मिसाल यह है कि इसके नीचे नहरें जारी होंगी और इसके फल दायमी होंगे और साया भी हमेशा रहेगा। ये साहिबान तकवा की आकिबत है, और कुफ्फार का अंजाम कार बहरहाल जहन्नुम है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस तंजील से खुश हैं, और बाज ग्रोह वो हैं जो बाज बातों का इनकार करते हैं। तो आप कह दीजिए कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और किसी को उसका शरीक ना बनाऊं, और मैं उसी की तरफ दावत देता हूं और उसी की तरफ सबकी बाज़गश्त है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है, और अगर आप इल्म के आ जाने के बाद इनकी ख्वाहिश का इत्तबा कर लेंगे तो अल्लाह के मुकाबले में कोई किसी का सरपरस्त और बचाने वाला ना होगा। हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे हैं और इनके लिए अज़वाज और औलाद करार दी है, और किसी रसूल के लिए ये मुमकिन नहीं है वो अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई निशानी ले आए कि हर मुद्दत और मियाद के लिए एक नविश्ता मुकर्रर है। अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है या बरकरार रखता है कि असली किताब उसी के पास है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुफ्फार से किए वादे अजाब को तुम्हें दिखला दें या तुम्हें उठा लें, तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। हिसाब की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि हम किस तरह जमीन की तरफ आकर इसको अतराफ से कम कर देते हैं, और अल्लाह ही हुक्म देने वाला है, कोई इसके हुक्म का टालने वाला नहीं है, और वो बहुत तेज हिसाब करने वाला है। और इनके पहले वालों ने भी मकर किया है, लेकिन सारी तदबीरें अल्लाह ही के इख्तियार में है। वो हर नफ्स के कारोबार को जानता है, और अनकरीब कुफ्फार भी जान लेंगे कि आखिरत का घर किसके लिए है। और ये काफिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल नहीं हैं। कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान रिसालत की गवाही के लिए खुदा काफी है, और वो शख्स काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सदक़ल्लाहुल अलीम।